Hello student, my name is Alok Rai and welcome all of you on St. Angel Public School YouTube channel. Today I am here to teach you class 10th computer science, and in this I am teaching you part B and chapter number 3, and name of the chapter is Spreadsheet Intermediate. What is the name of the chapter is Spreadsheet Intermediate. It is unit 3. Okay, it is unit 3. Spreadsheet is third unit of our computer science 402 book. Okay, today we are discuss freezing row and columns. Freezing row and column. First we need to know why we are use freezing row and column. What is the need of freezing row and column? The row and column are not fit into the row and column are not fit into one single window screen. Okay, the row and column are not fit into one single window or screen. When there are a lot of data entered in a worksheet, if there are too many row and column entered, we need to use the horizontal and vertical scroll bar. में किस चीज की जरूरत पड़ती है? Horizontal and vertical scroll bar to view the document, view the column and row. But sometime we may not need to view some row or column such as header row. Okay, but sometime we may need to view some row and column such as header row all the time, even when we scroll to the downside of Excel window. Okay, even when we scroll to the downside of Excel window, we can use the freeze pen feature for this purpose. We can use the freeze pen feature for this purpose. This feature freeze certain row and column in a worksheet that we want to remain in view while working in the worksheet. Okay, while working in the worksheet, the freeze pens button is available in the window group on the view tab. कहाँ पे available होगा? In the window group of the view tab. This feature has three options. This feature has three options. This feature has three options which are follow, जो कि हमारा क्या है? Follow है. देखिए पहला, this feature has three options which are as follow. First option है freeze pens. First option है freeze pens. It allow us to freeze the row. It allow us to freeze the row and column based on the current selected cell on the range of cell while scrolling the rest of the worksheet. Second feature, freeze top row. Freeze top row. It also us to use to freeze the. It also use. That is not us. That is use. It allow us to freeze the top row while scrolling the rest of the worksheet. ये क्या करता है? It allow used to freeze the top row while scrolling the rest of worksheet. Okay, and freeze first column. It allow us to freeze the first column while scrolling the rest of the worksheet. Okay, where we get that option, that three option, we go inside home tab. In which tab? Home tab. And in this we go inside window group, and when we click on freeze pen option, then we get that three option. तब हम क्या पाएंगे? इन तीनों ऑप्शन को पाएंगे. चलिए हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, हमें ज़्यादा समझ में आएगा. ठीक, तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं.
प्रैक्टिकल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें डॉक्यूमेंट ओपन करना पड़ेगा जिसमें हमें क्या करना होगा, टेबल, हमारा टेबल बना हो। तो मैंने एक पहले से बनाया डॉक्यूमेंट ओपन किया जिसमें से पहले से बनी हुई टेबल है, क्योंकि अगर मैं टेबल आप लोगों के सामने बनाने लगूंगा तो इसमें काफ़ी वक्त लगेगा। क्या लगेगा, इसमें काफ़ी वक्त लगेगा, ठीक ना। तो इस वजह से मैं टेबल को बना बनाया टेबल यूज कर रहा हूँ। तो चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो देखिए इस वीडियो में मैंने बनी बनाई टेबल लिया और इस टेबल को मैं स्क्रॉल करता हूँ, ठीक ना। इस टेबल को मैं स्क्रॉल करता हूँ तो अभी मैं नीचे क्या का डेटा, टेबल के नीचे का डेटा देखना चाहूँगा। तो आप देखिए ऊपर की रो जो होंगी, वो ऊपर की रो जो नेम, सैलरी, सिटी, एम्प्लॉय आईडी, एज, जेंडर, एक्सपीरियंस है, वो दिखना बंद हो जाएंगी। देखिए जैसे ही मैं नीचे किया, अब आप देखिए ऊपर से दिखना हमें बंद हो गया। अब हमें ये नहीं मालूम कि कौन सा कॉलम जो है, कौन सा कॉलम किस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना। अगर जो बनाने वाला है वो तो एक बार जान भी जाएगा, लेकिन जो बनाने वाला नहीं है, जैसे मैंने इसको बना के रख दिया तो मैं तो जान जाऊंगा, लेकिन अब आप लोगों को कह दूं देखने के लिए तो इसमें कौन सा कॉलम किस चीज का है आप नहीं जान पाओगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फ्रीजिंग का ऑप्शन आया। क्या, किसका ऑप्शन आया, फ्रीजिंग का। तो हम क्या करते हैं, सिंपल, जिसको हमें फ्रीज, जैसे इस कॉलम को मुझे फ्रीज करना है, इस कॉलम को फ्रीज करने का मतलब क्या होता है, इस कॉलम को मुझे परमानेंट यहीं पे रहने देना है, ठीक ना। परमानेंट यहीं पे रोक देना है, इसको ऊपर नीचे करें हमारे पास कोई फर्क ना पड़े, सब रो ऊपर नीचे हो, लेकिन ये रो एज इट इज यहीं पे रहे। ये रोज क्या है हमारा, एज इट इज यहीं पे रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, व्यू टैब में जाएंगे, फ्रीज पे जाएंगे और देखिए हम किसको किसको फ्रीज करना चाहते हैं, कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं। तो किसको फ्रीज करना, अरे रो को फ्रीज करना चाहते हैं। किसको फ्रीज करना चाहते हैं, रो को, टॉप रो को। तो हम टॉप रो पे क्लिक करेंगे और जैसे ही टॉप रो पे मैंने क्लिक कर दिया, अब ये फ्रीज हो गया। अब हम इसको कितना भी नीचे जाएंगे, कितना भी नीचे जाएंगे, ये हमारा ये हमारा रो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अब ऐसे ही देखिए अभी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर क्या है, दे रखा है 1 2 3 4। अब जैसे ही हम मैं क्या करूँगा, राइट लेफ्ट में जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा मैं, लेफ्ट से राइट में जाऊँगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा सीरियल नंबर हट गया, नेम भी हट गया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा सीरियल नंबर दिखे। मतलब अगर मैं चेक करूं कि ये एज किसका है तो हमें दिखे, नाम भी दिखे और सीरियल नंबर भी दिखे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम सीरियल नंबर कैसे देखते हैं। तो ये देखिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रो को इस हमें क्या करना पड़ेगा, इस रो को हटा के अब इस कॉलम को हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। किसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, इस कॉलम को जिसको हम फिक्स करना चाहते हैं। उसके बाद दोबारा हमें व्यू टैब में जाके विंडो ग्रुप के अंदर जाके फ्रिज पेन पे हम क्लिक करेंगे और फ्रिज पेन पे क्लिक करके अब देखो हमें किसको फिक्स करना है, कॉलम को फिक्स करना है। तो हम क्या करेंगे, फ्रीज फर्स्ट कॉलम, हम किस पे क्लिक करेंगे, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। जैसे ही हम फर्स्ट कॉलम पे फ्रीज करेंगे, हमारा देखिए ये हमारा कॉलम क्या हो गया, फ्रीज हो गया। अब हम कितना भी राइट में जाएं, हमारे पास ये डेटा क्या रहेगा, हमारे पास ये डेटा प्रेजेंट रहेगा। क्या रहेगा, ये डेटा हमारा प्रेजेंट रहेगा। ये डेटा हमारा कहीं नहीं हटेगा, ठीक ना। ये डेटा ऊपर नीचे हो जा रहा है, लेकिन आप देखिए राइट लेफ्ट में जाने पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ये अपनी जगह पे फिक्स है। अच्छा आप देखें, एक चीज केयर किए कि आप लोग जब क्या कर रहे हैं, जब फ्रीज कॉलम किया तो फ्रीज रो का ऑप्शन, जो फ्रीज रो का कंडीशन था, अपने आप हट गया। देखिए मैंने हटाया नहीं, देखिए, लेकिन देखिए फ्रीज रो जो था वो हट गया। लेकिन अब हम चाहते हैं एट अ टाइम हमारा पहला रो भी रहे और पहला कॉलम भी रहे, हमारा पहला रो भी रहे और ये पहला कॉलम दोनों एट अ टाइम फिक्स रहे। मैंने क्या बोला कि पहला रो और पहला कॉलम दोनों एट अ टाइम फिक्स रहे। उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ठीक ना। क्यों, ऐसा हम दोनों के हेल्प से नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हम फ्रीज पेन ऑप्शन में एक बार में एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन को हम एक बार में नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। या आप ये कह लो एक सीट पर हम फ्रिज का एक ही ऑप्शन यूज कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन हम फ्रिज का नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा,
तो देखिए ये तो प्रॉब्लम बड़ा हो गया। अगर मान लीजिए मुझे कुछ ऐसा डेटा है जो कहाँ जिसमें क्या है, पहले कॉलम और मुझे पहले रो को भी क्या करना है, फ्रीज करना है, तो ऐसे सिचुएशन में तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं तो या तो रो को फ्रीज कर पाऊंगा या तो मैं क्या कर पाऊंगा, कॉलम को फ्रीज कर पाऊंगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास तीसरा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, देखिए मुझे इस रो को फ्रीज करना है, इस कॉलम को फ्रीज करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। किस पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा इस सेल पे। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर वाला पूरा रो फ्रीज करना है और उसके लेफ्ट वाला पूरा कॉलम हमें फ्रीज करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा, व्यू टैब में जाऊंगा, फ्रीज पे जाऊंगा, और जो हमारे पास पहला ऑप्शन है, जो हमारे पास पहला ऑप्शन है फ्रीज पेन ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, फ्रीज पेन ऑप्शन, मैं इस पे क्लिक करूंगा। मैं किस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा हमारे पास क्या होगा, पहला रो और पहला कॉलम हमारा फिक्स हो जाएगा। देखिए करके, अब मैं इसको क्या करूंगा, देखिए रो आपका एज इट इज बना हुआ है, और मैं जब इसको राइट में शिफ्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि आपका कॉलम भी एज इट इज बना हुआ है। आपका कॉलम कैसा बना हुआ है, एज इट इज बना हुआ है। ठीक, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अभी तो मैंने सिर्फ एक रो और एक कॉलम मैंने क्या किया, फिक्स किया। अब मुझे मान लीजिए ऐसा जरूरत पड़ जाए कि मुझे दो रो क्या करनी हो, दो रो और दो कॉलम फिक्स करनी हो। क्या करनी हो मुझे, दो रो दो कॉलम, या ये कह लीजिए कि मुझे दो रो और एक कॉलम फिक्स करनी हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हेडिंग रहे, एक हेडिंग रहे कि एम्प्लॉय डेटा, और उसके बाद ये सीरियल नंबर, नेम, सैलरी, सिटी, आईडी रहे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों रो को फिक्स करना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, इस पहले मैं कर इसे अनफ्रीज कर लेता हूँ, पहले मैं इसे अनफ्रीज कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, दो रो और एक कॉलम को फ्रीज करना है, तो मैं क्या करूंगा, अब अपने सेल को, इस वाले सेल को सेलेक्ट करूंगा। किसको सेलेक्ट करूंगा, इस वाले सेल को। क्यों इसको सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर के दो रो को मुझे क्या करना है, फ्रीज करना है, और इसके लेफ्ट साइड के एक कॉलम को मुझे फ्रीज करना है। ठीक ना, तो मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा और फ्रीज पेन पे मैं क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा। अब देखिए ऊपर का दो रो और नीचे का हमारा लेफ्ट साइड का एक कॉलम हमारा क्या हो गया, फ्रीज हो गया। अब जैसे ही हम डेटा को ऊपर करेंगे, देखिए दो रो अब क्या है, फिक्स है। ऐसे ही देखिए जब मैं क्या कर रहा हूँ, राइट में ले जा रहा हूँ तो हमारा कॉलम भी फिक्स है। ऐसे ही आप बताइए कि अगर मुझे दो रो और दो कॉलम को फिक्स करना हो तो मुझे किस सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा, सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। हाँ बिल्कुल सही, हमें इस कॉलम को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। किस कॉलम को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, इस कॉलम को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों सेलेक्ट करना पड़ेगा, सबको मालूम है, करके दिखाऊं, चलिए मैं करके दिखा देता हूं। पहले मैं क्या कर लेता हूं, जो लगाया था फ्रिज का कंडीशन वो हटा दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, व्यू में जाऊंगा, फ्रिज पेन में जाऊंगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, किस पे, फ्रिज पेन पे। किस पे क्लिक करूंगा, फ्रिज पेन पे। जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा, अब दो रो दो कॉलम क्या हो जाएगा हमारा, फिक्स हो जाएगा। ठीक ना, अब ये कहीं नहीं जाएगा। देखिए दो रो नहीं जा रहा है, और यहाँ पे देखिए जब मैं राइट में कर रहा हूँ तो दो कॉलम भी नहीं कहीं जा रहे हैं। ठीक ना, तो ये क्या हो गया, ये हमारा मेथड हो गया कि हम एक से ज़्यादा रो और एक से ज़्यादा कॉलम को जब एक साथ हमें फ्रीज करना होगा, तब हम पहले ऑप्शन का यूज करेंगे। क्या ऑप्शन का नाम क्या है हमारा, हमारे ऑप्शन का नाम क्या है, फ्रीज पेन ऑप्शन। जब हमें एक टॉप रो को फ्रीज करना होगा तो फ्रीज टॉप रो का ऑप्शन यूज करेंगे, और जब हमें एक फ्रीज करना होगा कॉलम को तो हम क्या करेंगे, फ्रीज फर्स्ट कॉलम का हम ऑप्शन का यूज करेंगे। ये दोनों ऑप्शन हमेशा ध्यान रखिए, ये टॉप वाले रो को, जो सबसे ऊपर वाला जो रो होगा उसको फ्रीज करेगा, और ये हमेशा सबसे लेफ्ट वाले कॉलम को ही फ्रीज करेगा, इधर उधर के कॉलम को फ्रीज नहीं करेगा। ठीक ना, तो और मैंने एक चीज और स्टार्टिंग में बता दी कि हमेशा इन तीनों में से सिर्फ हम एक ही ऑप्शन यूज कर सकते हैं, एक सीट पर एक टाइम में। ठीक ना, एक टाइम में एक सीट पर सिर्फ एक ही ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन का हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट।
सब लोगों को समझ में आया होगा। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सेंट एंजल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।